I think it's very tough to make a Gen Z person work. You think you are entitled to a break because तुम exhaust हो गए हो, mental bandwidth खत्म हो गई है, but काम तो खत्म नहीं हुआ है ना. And compare it to a millennial. If you see the X over the Gen Z, that's my feeling. Because millennials at least they'll do justice. उनसे काम अपने आप हो जाएगा, उनको बस बोलना होता है. Hi guys, my name is Ashish. I'm the manager and this is... I am Gaurang and I am the employee. Why are you so scared? I didn't know appraisal meetings were being recorded. That's the new rule. Okay. Does Gaurang work more than his manager? हाँ मुझे लग रहा है आप नो बहुत बोलते हो एंड अ साइन ऑफ अ गुड मैनेजर इज लाइक नॉट टू से नो ऑल द टाइम कि मैंने छुट्टी मांगी तो नो बोल दिया, छुट्टी जो हाफ डे मांगा तो नो बोल दिया. सबको नो बोलना नहीं होता है, कभी कभी यस भी बोलना होता है. You think you work more because you ask for more half days and... No, I take more effort in texting a long ass message कि मैं क्यों नहीं आ रहा या फिर क्यों हाफ डे ले रहा हूँ. आप बस नो बोलते हो, दैट इज वेरी लो एफर्ट. नो, आप तो बस नो बोल के छोड़ देते हो. तो क्या 2 लेटर्स? Okay, what about actual work? Actual work, I think you manage, which is कि इसने काम किया है कि नहीं, वो मंडे टू मंडे आप कैचअप में देख लेते हो कि मंडे को काम हो गया सारा, वेरी गुड, नहीं हुआ है तो वेरी बैड. बट काम तो वी डू नो. हाँ, but my job is managing. बट वही तो, see, that's what I was saying. Thank you. My job, managing, is tougher than doing the work because I've done the work for 5 years. Oh, After doing the work, slowly you go up the ladder. where you don't have to do work. देखो, CTC में फर्क सिर्फ काम के हिसाब से नहीं होता है. It's also about the stakes. What is your responsibility? 1 task. My responsibility is 25 tasks. But 25 tasks which 25 people do, which is 0 tasks. Overlooking 25 tasks is also a big task. Okay. Sure. I'll speak to you in 5 years when you're here. Sure. If you're here. Oh, so you are planning to stay here? तब तक तो आपके पास कुछ भी काम नहीं होगा. 50 people under me. Damn, bro. Who's better at work, Gen Z or millennials? Yep. I think it's very tough to make a Gen Z person work. उनको कुछ काम देना मतलब ऐसे डर के काम दिया जाता है क्योंकि तुम्हें पता है they might say कि ओ 4 बजे तो मुझे जाना है. Correct. And you can't say anything. हाँ, you can't say anything. And with Gaurang also specifically, तुम महीने में जाते हो I think 6-7 बार easily. 4 बजे जाना है, 5 बजे जाना है, 3 बजे जाना है. But what about the work? You think you are entitled to a break because तुम exhaust हो गए हो, mental bandwidth खत्म हो गई है, but काम तो खत्म नहीं हुआ है ना. तो एक Gen Z से काम करवाना मुझे लगता है बहुत tough है because it's a lot of barriers and a lot of like you're walking on eggshells, I feel, constantly. And compare it to a millennial. If you see the X over the Gen Z, that's my feeling. कि भाई millennials से ही काम करवाओ because millennials at least they'll do justice. उनसे काम अपने आप हो जाएगा, उनको बस बोलना होता है. 10 फॉलोअप नहीं लगते. अगर वीकेंड पे कुछ काम करना है तो अपने आप like they take the responsibility. But that is also not a good thing. But Not always. That is the question But is still. sometimes- Yeah. I mean, Sometimes तो everyone needs to work on a weekend. Sometimes. ऐसे नहीं है millennials are robots who don't need breaks. Millennials also need breaks. They also need weekend पे थोड़ा दिमाग का शांति. correct. But Gen Zs need it like more often. I don't know why. I think उनका वो attention span का भी issue है. But काम में क्या attention span? तुम TV थोड़ी देख रहे हो. नहीं but काम तो काम है ना, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं. agreed. What's one thing you don't like about each other? एक चीज़ है जो शायद बाकी के कॉर्पोरेट बॉसेस के जैसा जो मैं सुनता हूँ कि मेरा बॉस माइक्रो मैनेज करता है, तो आई थिंक अप टू सम एक्सटेंट आप भी करते हो. एंड वो एक चीज़ है जो आई वुड से कि आई डोंट लाइक अबाउट यू, कि मतलब एक ट्रस्ट होता है ना कि आप अगर 1 साल से या फिर कोई और एक्स नंबर ऑफ मंथ से काम कर रहा है तो उतना तो ट्रस्ट होना चाहिए कि ये इंसान या ये बंदा या बंदी कर देगी काम मेरे लिए. But that trust is earned, na. If you're doing, see, I don't enjoy micromanaging, frankly. So you agree that you To micromanage? an extent, yes. I think
every manager in any company, I think to an extent, does micromanage a little. But because the stakes are very high, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें गलत जा सकती है. बट एक एम्प्लॉय के लिए उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक चीज़ गलत गई. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर एक मैनेजर थोड़ा माइक्रो मैनेजर डीप डाउन होता है, और वो माइक्रो मैनेज नहीं करेगा अगर तुम तुम्हारा ढंग से रिपोर्ट करो कि हाँ ये जो मुझे करना था ये मैंने कर लिया. बट वो रिपोर्ट भी तो नहीं आती कि हाँ ये हो गया, विच इज़ वाई बार बार पूछना पड़ता है भाई क्या स्टेटस है इसका, या तुम 4 से 5 क्या कर रहे थे, ये क्यों ख़त्म नहीं हुआ. ऑल दिस इज, आई डोंट थिंक दिस इज टॉक्सिक, आई थिंक दिस इज जस्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से. But it just creates a sense of distrust among us and you. Now that you said it, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी बाकी की टीम यहाँ पे नहीं है, तो they don't know that you think this, right? I think it also creates a feeling of distrust कि यार because we have these gossip sessions जहाँ पे या मतलब bitching sessions you can call, जब हम ये बहुत ज़्यादा honest नहीं हो रहा है. हाँ, honesty is the best policy. तो हाँ, we have these bitching sessions where we like don't bitch about you, sorry, we don't bitch about just you. In general say कि आशीष ने ऐसे किया वैसे किया, like he just doesn't trust me, and then it doesn't give us, मतलब हमको लगता है कि नहीं काम ही नहीं करते ना, क्यों ही काम करे अगर ये ऐसे ही माइक्रो मैनेज करने वाला है. Too much honesty part 2. तो हाँ मतलब नहीं करते हैं ना, लाइक खुद ही कर लो फिर, इतना ही अगर इन्वॉल्व होना है हमारे काम में तो खुद ही आके पूरा काम करके चले जाओ, तुम भी खुश हम भी खुश. I appreciate the honesty, but कहीं पे वो रिस्पेक्ट भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है आई थिंक. बट आई थिंक वो रिस्पेक्ट तो आप माइक्रो मैनेज कर रहे हो इसीलिए तो कम हो रहा है. मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं रिस्पेक्ट करता आपको अगर आप माइक्रो मैनेज नहीं करते तो. लाइक क्या बोलते हैं, इट्स लाइक अ लूप कि आप माइक्रो मैनेज करोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, बट आपको सी आई वुड नॉट माइक्रो मैनेज इफ यू डिडंट टेक एवरीथिंग लाइटली. माय प्रॉब्लम इज My problem is he takes everything very lightly. Although इसका daily output है बराबर है, but उसको I think तुम्हें बहुत push लगता है चीज़ें करवाने के लिए, क्योंकि तुम्हें लगता है हाँ एक ही तो प्रोजेक्ट है, एक ही तो PPT है, एक ही तो स्क्रिप्ट है, एक ही तो मीटिंग है, इट्स एवरीथिंग हाँ तो क्या हुआ वाला एटीट्यूड, which I think is a problem. What's the most unnecessary thing Ashish made Gaurang do? Oh. How is that unnecessary? क्योंकि आप खुद नहीं आते हो. मतलब सॉरी बट मतलब हम आके क्या करें जब आप मतलब इफ प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच इज अ सेइंग तो I'm there most days. बट देखो ना लाइक अगर हमें इतना अगर स्ट्रिक्ट कर दिया है कि 11 बजे आना है एंड यू नो मुंबई ट्रैफिक लाइक यू डोंट नो कब ट्रैफिक ज़्यादा है, कब क्या हो रहा है, कहाँ पे खोद दिया रास्ता, कहाँ पे कुछ हो गया, तो 11 का 11:15 11:20 हो जाए तो आई थिंक इट शुड बी लाइक एक्सेप्टेबल, लाइक नॉट एवरी डे बट व्हेन एन एम्प्लॉय इज सेइंग कि आई गॉट लेट बिकॉज ट्रैफिक मिला तो आई एम प्रिटी श्योर दे आर नॉट लाइंग. But what if it starts happening on all days? बट 11 बजे आप खुद नहीं आते तो आप कैसे क्यों नहीं आते 11 बजे फिर? देखो मेरा थोड़ा अलग है. अच्छा. मंडे मॉर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मंडे मॉर्निंग्स आई मेक श्योर मैं 11 बजे आ जाऊँ. बाकी दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, आई एग्री, बट द एक्सपेक्टेशन इज कि हाँ टीम आके काम कर रही होगी शार्प 11 बजे, मुझे आके 12 बजे चेक करना है. बट मैं एक आपको पूछता हूँ, अगर हम 11 बजे शार्प आते हैं तो आप हमको 7 बजे जाने देते हो? वो भी जाने देते नहीं हो जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक. तो सर तो ये क्या बात है फिर 11 बजे आओ लेकिन टाइम पे निकलो मत. टू मच ऑनेस्टी पार्ट तो 3. ये तो सही नहीं है ना. कॉर्पोरेट्स दूसरे चालू होते हैं 9 बजे 10 बजे, हमारा 11 बजे चालू होता है. हाँ. और ख़त्म भी लेट होता है, आई एग्री, ख़त्म भी थोड़ा लेट होता है. बट अगर 11 बजे का फ्रीडम है तो सुबह फिर टाइम पे आओ ना. एक कॉर्पोरेट में काम करने का एक डिसिप्लिन होता है. तुम स्कूल में कैसे जाते थे? 9 बजे का पीरियड है, तुम पहुंचते हो 10 बजे या 9 बजे. करेक्ट. तो वही रखो ना. कॉलेज वाला एटीट्यूड कैसे चलेगा ऑफिस में? कॉलेज में तुम बंक कर रहे हो, आधा घंटा लेट पहुंच रहे हो, बाहर मैम बोल रही है यहाँ खड़े रहो, तुम तो मजे कर रहे हो क्योंकि तुम्हें क्लास में जाना ही नहीं था. बट स्कूल वाला डिसिप्लिन तुम ऑफिस में लाओगे तो जाके काम में थोड़ा डिसिप्लिन आएगा, जो शायद मुझे भी ज़रूरत है. करेक्ट. बट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ज़रूरत है. तुम अगर काम शुरू नहीं करोगे तो मैं आके चेक क्या करूँगा? अच्छा. और अगर मैं कुछ चेक नहीं कर रहा हूँ तो काम आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर तुम बोलोगे मैं माइक्रो मैनेज कर रहा हूँ क्योंकि तुम लाइटली ले रहे हो, क्योंकि तुम 11 बजे नहीं आ रहे हो. मैं आ जाऊँगा 11 बजे, आप मुझे 7 बजे
कुछ भी हालत में छोड़ दो। तुम ट्राई करो, एक हफ्ता में तुम्हें देता हूँ चैलेंज। हाँ। तुम टाइम पे आओ 11 बजे, यू कैन लीव एट 5 PM if you Oh. do consistently Oh. every day 11 AM. We have it on camera. Yes. Oh, let's go. You can have it on email also. Oh, unnecessary things. Email. 11 बजे मैं आने बोलता हूँ क्योंकि डिसिप्लिन हो, सब कुछ ईमेल पे रखने बोलता हूँ ताकि रिकॉर्ड हो, सब कुछ स्लैक पे अपडेट आना चाहिए ताकि यू कैन गो बैक एंड ट्रैक किसने क्या बोला। तो वो तुम्हारे लिए लाइक मुझे लगता है तुम जैसे जेनजीज के लिए बहुत कैजुअल चीज़ है। स्लैक क्या है, जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप कर लो, बट 50 व्हाट्सएप ग्रुप्स है विच नो वन केयर्स अबाउट। स्लैक इज डॉक्यूमेंटेड। तो मेरे लिए अननेसेसरी कुछ भी नहीं है, शायद एक आध चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है, बट वो हो रही है क्योंकि ज़रूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट मच। What's one thing you admire about each other? Yeah. It is very self-explanatory, I think. कि I think आपने टीम में ऐसा एक माहौल बना के रखा है, माइक्रो मैनेजिंग असाइड, ऐसा माहौल बनाया है कि वी जस्ट फील कंफर्टेबल कमिंग टू यू एंड लाइक शेयरिंग स्टफ विद यू। ऐसे लगता नहीं है कि अरे यार शिट आशीष आ रहा है, शिट यार शान बैठो प्रिटेंड टू डू वर्क। आई नो कि इवन इफ वी आर लाइक लेट्स से वी आर टॉकिंग और लाइक वी आर जस्ट वॉचिंग रील्स, probably in the middle of the day you won't probably like say कि अरे क्या कर रहे हो, काम करो करके। You're not that boss and you don't make us feel like we are employees and you are a higher up. तो thanks for that and it is something that I really appreciate. तो I hope कि आप ये करते रहोगे ऐसे। हाँ टाइम पे आओगे 11 बजे तो हाँ करते। अभी एक्चुअली मेरा 5 बज गया, मैं जाने का टाइम हो गया मेरा। तो ठीक है, yeah that is all. That's very sweet. Thank you, Gaurang. One thing that I really admire about Gaurang is कि he is eager to do anything and everything. तो मुझे जो लगता है बहुत सारे टास्क होते हैं जो कभी कभी किसी को बोरिंग लगते हैं, बट कोई भी टास्क हो तुम बोलते हो हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो वो जो एंथुजियाज्म है, जो ईगरनेस है, आई थिंक वो बहुत हाई है तुम्हारा कंपेयर टू अदर्स। योर एंथुजियाज्म इज ग्रेट फॉर डूइंग एनीथिंग एवरीथिंग at any time, which is what I appreciate. Yeah. I'm also eager to like go home right now. So honesty part 4. What's the one thing you have never said to each other? shit. मुझे लगा आप कुछ क्रेजी लिख रहे हो मेरे बारे में। चलो ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कभी कभी, सी दिस इज द हाफ ऑफ व्हाट आई थिंक, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि दिस योर फैशन सेंस इज नॉट द बेस्ट, बट इट इज, आई एम जस्ट सेइंग यू कैन डू सो मच बेटर बिकॉज आप कितने अच्छे दिखते हैं। मतलब अभी आपकी शर्ट जो है फॉर एग्जाम्पल काफ़ी बेसिक सी नहीं लग रही है आपको? देखो ऐसे कुछ ऐसे थोड़ा ट्रेंडी कलर। हाँ, तो आई थिंक कुछ चीजें सीखनी बाकी है। हाँ, आई एग्री, करेक्ट। अदरवाइज ग्रेट पर्सन, आई लव हिम, एज आई सेड डजंट फील लाइक अ बॉस, इसीलिए मैं ये शेयर कर पाया। If you were felt like a अभी boss to ओवर me. कॉम्पेंसेट मत करो। मैं समझ गया। मैंने लिखा है आई डोंट हेट यू। Oh. इट्स द वन अनस्पोकन थिंग, थोड़ा अनएड्रेस्ड ही जाता है। मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा लगता है कि मैनेजर ना हेट्स देयर एम्प्लॉइज, हेट्स देयर टीम मेंबर्स, बट ऐसा नहीं है कि आई लव यू, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। तो आई डोंट हेट यू, आई केयर अबाउट द टीम मेंबर्स, बट ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती काम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ईवल बनने में मज़ा आता है। That's very well put. तो that's one unspoken thing which I think everyone should know, whoever's watching this video should know. Yeah. And even to you, very honestly, I don't hate you, but I hate you because you don't like my fashion sense. If you want to watch more such interesting conversations, tell us in the comments below. And don't forget to like, share and subscribe to Filter Copy Candid.